If I quote one name of the person, that is Mr. Mukesh Ambani. You all have heard, I suppose. तुम सब ने Mr. Mukesh Ambani का नाम सुना होगा. और I will say, who is Mukesh Ambani? कौन है? He is the chairman, or you will say MD of the Reliance Industry Limited. Who is Alok Agarwal? Alok Agarwal कौन है? यार, Alok Agarwal is CFO of the Reliance Industry Limited. That is Chief Finance Officer. अगर मैं कोट करूं, who is Aditya Sood? Aditya Sood is Sales Manager of Reliance Industry Limited. If I quote one more word like Rashmi Agarwal, who is she? She is the Finance Manager of Reliance Industry Limited, and there are thousands and thousands of members or employees who are working in Reliance Industry Limited, right? Who they all are? They all are working at different levels of the organization. As I just quote, there are thousands of persons in this industry, in any industry, who are working. बहुत सारे बंदे काम करते हैं, but सब अलग अलग हायरार्की में, सब अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं. वो जो लेवल बटे हुए हैं, they having different responsibility, different status, different authority, different nature of work, different problems they suffer, different kind of skills they have to tackle their problems. उनका सब कुछ अलग है. तो उसी हिसाब से उनकी कैटेगरी बनी हुई है, उनके लेवल्स बने हुए हैं जिनमें वो वर्क कर रहे हैं. सबके फंक्शंस अलग हैं. अगर कोई ऊपर है, एक मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर है, मतलब सीईओ है, तो उनके एस्पेक्ट्स अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनके फंक्शंस अलग हैं. तो these are levels of management. वो कह रहा है एक मैनेजमेंट में, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट हो रही है, मतलब हम अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, प्रोसेस एक कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हर मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल बांट दिए गए हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? इफ आई आस्क वन typical definition or typical meaning of level of management. So level of management is different categories of managers starting from the lowest to the highest, or their responsibilities, authorities, status, problems vary from each other. That is level of management. If I say typically there are 3 levels of management. That is, if you have a look over the pyramid, that is top management, middle management and operational management, or you can say supervisory management. This is the level of management. अब हम एक एक करके पढ़ते हैं. If I talk about top level management, टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, किस टाइप के बंदे उसमें होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, क्या कुछ उनका बेस है. टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स. सबसे ज्यादा जो सीनियर पोस्ट पे होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं. लाइक चेयरमैन और चेयरपर्सन, वट एवर यू वांट टू से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स. ये सब क्या हैं? दे आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये सब क्या है जो मैंने बोले हैं? चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीओओ. ये सब क्या है? ये ऐसे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो मैनेजमेंट में सबसे हाईली थिंकिंग, क्वालिफाइड काम करते हैं. इनका काम मेंटली ज्यादा होता है और फिजिकली कम होता है. Who they are, what they basically do, what are the functions they going to perform. The topmost functions are, सबसे पहले करते क्या है? सीईओ बैठे मुकेश अंबानी सर करते क्या है? क्या वो ये देखते हैं? क्या वो ये खड़े हो जाते हैं, अच्छा मैं देखूंगा यार मोबाइल कैसे बन रहा है? वो नहीं देखते. वो क्या करते हैं? They frame policies, they frame strategies, they frame some plan, they formulate how to survive in the organization, they consider all the business environment which is going on in the market. ये क्या है? ये अंबानी सर कर रहे हैं. वो जाके ये नहीं देखेंगे कि क्वालिटी चेक नहीं करेंगे, वो ये देखेंगे कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, मैंने क्या पॉलिसी फ्रेम करनी है. तो उसका ये क्या है?
They are the responsible for the welfare, for the survival of the organization. मुकेश अंबानी सर ही देखेंगे ना कि मैं कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करूं, उसका वेलफेयर कैसे मेंटेन करूं. तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट. उनका सबसे मेन टास्क क्या है, उनका सबसे मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ टॉप मैनेजमेंट, आई विल से, इज टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही हैं, मुकेश सर का तो बहुत बड़ा एम्पायर है, तो वो इंटीग्रेट करेंगे ना कि सारे एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट होके चले. तो उनका मेन टास्क क्या है? इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. तो ये फंक्शंस हैं जो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट मद्देनजर रखता है कि हाँ, हमें ये काम करना है, हम इस काम करने के लिए बने हुए हैं. ये फंक्शंस अपने दिमाग में बिठा लो. यही लाइन एज इट इज केस स्टडी में उठ के आ जाएगी और तुम्हें पूछेंगे कि मिस्टर XYZ ये कर रहा है, बताओ वो कौन से लेवल पर है, बताओ उसे और क्या करना चाहिए. तो अगर तुम्हें फंक्शन पता होगा तो तुम उसका लेवल बता सकोगे. अगर तुम लेवल बता सकोगे तो एक्स्ट्रा फंक्शन बता सकोगे कि वो वहां पर क्यों है, उसका काम क्या है. इज आई एम क्लियर अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट? अब टॉप मैनेजमेंट का कितने हाईली फंक्शन है समझ आ गया तुम्हें, कितने ऊपर भारी काम करते हैं. तो देयर एक्टिविटीज, देयर नेचर ऑफ वर्क इज वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. दे रिक्वायर अ कंप्लीट कमिटमेंट. एक होता है ना डेडिकेशन चाहिए उस काम को करने के लिए. दे रिक्वायर लॉन्ग आवर्स. प्लान करना आसान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी फॉर्म करना आसान नहीं है. मुकेश अंबानी सर बहुत घंटों बैठते होंगे तो कोई प्लान निकल के आता होगा. तो देयर वर्क इज वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी टाइम टेकिंग. इज आई एम क्लियर अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट? कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमें डेफिनेशन देखनी है कि कौन कौन उसमें आते हैं, किस टाइप के बंदे होते हैं, क्या नाम होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं और उनकी जॉब कैसी है. Is I'm clear about this? Now proceeding towards the next level, that is middle level management. मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मतलब इसमें किस कैटेगरी के बंदे होंगे? इसमें ना डिविजनल हेड्स, आई विल से डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं. मतलब डिपार्टमेंट्स जो बने होते हैं उनके हेड्स, लाइक सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. ये सब क्या है? ये सब बहुत सारे डिविजन्स के हेड बना दिए. जब हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट करे, उनके ऊपर जो हेड बिठाया वो मिडिल लेवल में आता है. अब ये मिडिल लेवल मैनेजर्स करते क्या हैं, उनका कर्तव्य क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, I will going to tell you one by one. अब इनका सबसे पहला काम क्या होगा? यार टॉप मैनेजमेंट ने क्या बनाई थी? पॉलिसीज बनाई थी, प्लान्स बनाई थी. अब इनका काम क्या होगा? देयर मेन टास्क को इंटरप्रेट दैट प्लान्स एंड पॉलिसीज. उनको इंटरप्रेट करेंगी, उनको इम्प्लीमेंट करेंगी, उनको कंट्रोल करेंगी कि जो ऊपर वालों ने बता दिया, मुझे प्लान बता दिया, स्ट्रैटेजी बता दी, पॉलिसी बता दी, अब उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उनको ये इम्प्लीमेंट मिडिल लेवल मैनेजर्स करेंगे. वो देखेंगे कि जो प्लान्स ऊपर ने करा है, क्या हमने वो इम्प्लीमेंट करा, क्या हमने इंश्योर करा कि वो चल रहा है. ये भी चेक करेंगे. दे इंश्योर इज देयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर देयर और नॉट. कि भाई जो रिसोर्सेज कंपनी में चाहिए, अंबानी को नहीं देखेगा कि उसे मशीन चाहिए, वो प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा कि मुझे किस रिसोर्स की जरूरत है. अप्रूव भले ही ऊपर टॉप मैनेजमेंट से हुए, बट दे इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान्स और पॉलिसीज. जो ऊपर वालों ने प्लान और पॉलिसी बना दी, उसमें क्या रिसोर्स चाहिए, क्या चीज की डिमांड है, वो ये देखेंगे, वो ये इंश्योर करेंगे क्या वो चीज अवेलेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हमें कहाँ से ले, कैसे ले. वो इम्प्लीमेंट करेंगे. वो ये कोऑर्डिनेट करेंगे कि सारी एक्टिविटीज साथ में हो. ये भी इंश्योर करेंगे कि एक स्पेसिफाइड पर्सनल हो, स्टाफ हो. ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितना नेसेसरी स्टाफ चाहिए हमारे पास उतना नेसेसरी स्टाफ हो. अंबानी को नहीं पता कि उसके नीचे कितने बंदे चाहिए और कितने नहीं चाहिए. अगर मान ले प्रोडक्शन मैनेजर अंबानी को ये बोल देगा कि यार मेरे को तो प्रोडक्शन करने में 15 नहीं 25 बंदे चाहिए, तो वो उसने बताया ना, प्रोडक्शन मैनेजर ने, वो इंश्योर कर रहा है इज देयर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी स्टाफ, नेसेसरी पर्सनल इज देयर और नॉट. इन शॉर्ट, अभी हम और भी फंक्शन पढ़ेंगे. जो मिडिल लेवल मैनेजर है
वो सबऑर्डिनेट है टॉप मैनेजर का, बट वो सुपीरियर है ऑपरेशनल मैनेजर का। मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजर एंड द ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स। वो नीचे वालों और ऊपर वालों के बिचौलिए होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, जो ऊपर से दोनों के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। तो क्या ये जो हमने फंक्शंस पढ़े कि मैनेजर्स जो है वो ये देखता है कि पर्सनल है नहीं है, वो मोटिवेट कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल भी है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है ऑल द एक्टिविटीज विच आर बीइंग डन बाय द फ्लोर लेवल मैनेजर, मीन्स ऑपरेशनल लेवल के जो भी बंदे काम कर रहे हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, क्योंकि वो नीचे वालों से काम उनको करवाना है, टॉप मैनेजमेंट को नहीं करवाना। Am I clear about all the function which middle level managers were going to perform? कि वो क्या करते हैं? They act as a link between the top management and the operational management also. ये भी देखते हैं, they are responsible for the activities, for the quality, for the outcome of the floor level managers. Floor level managers मतलब नीचे वाले operational level managers. Now मिडिल लेवल मैनेजमेंट में या मिडिल लेवल मैनेजर्स को क्या कहा जाता है? सुप्रिटेंडेंट्स ऑल्सो। उनको सुप्रिटेंडेंट्स के नाम से भी बोला जाता है। सेल्स सुप्रिटेंडेंट्स या सेल्स मैनेजर के नाम से डिपिक्ट किया जाएगा या सेल्स सुप्रिटेंडेंट के नाम से डिपिक्ट किया जाएगा। बट गाइस, सुप्रिटेंडेंट्स और सुपरवाइजर इन वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। सुपरिटेंडेंट्स जो होते हैं वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, बट सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो हमारे ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स होते हैं। Am I clear? Now, last level of management is operational level or you can say supervisory level. अभी मैंने बताया था इस ऑपरेशनल लेवल में कौन होंगे? फॉरमैन्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे। अब जो ये हैं ऑपरेशनल लेवल के बंदे जिन्हें हम सुपरवाइजर्स कह रहे हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट से मिसमैच मत करना। ये सुपरवाइजर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल वर्क फोर्स जो इनसे नीचे लेबर काम कर रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको कौन सुपरवाइज कर रहे हैं? ये फ्लोर लेवल मैनेजर के बंदे, ये सुपरवाइजर्स, ये ऑपरेशनल लेवल के बंदे, नीचे वर्क फोर्स जो काम कर रही है उनके ऊपर बैठे हुए हैं ना। तो ये क्या है? दे आर द लिंक बिटवीन द मैनेजर्स एंड द वर्क फोर्स। जो मैनेजर्स हैं और जो नीचे वर्क फोर्स हैं उनके बीच का लिंक कौन है? ये है। ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोस पॉलिसीज को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये देखते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। इनके हार्ड वर्क पे, इनकी लॉयल्टी पे बेस्ड है ना कि हाँ कितना आउटपुट आ रहा है, कितना प्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्वालिटी कैसी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल। जो सुपरवाइजर्स हैं वो क्या है? वो वर्कर्स के ग्रीवेंसेस मैनेजर को बताते हैं और मैनेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन वर्कर को करवाते हैं। तो दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजर्स एंड द वर्कर्स एंड दे आर द ओनली वन who are in direct contact with the workers. अभी तक जो मुकेश अंबानी सर CEO हैं उनको नहीं पता कि भाई वर्कर्स को उनको नहीं देखते। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में हजारों बंदे काम करते हैं, लाखों बंदे, आई विल से 2,36,000 बंदे उन पे काम कर रहे हैं। तो क्या अंबानी सबको जानता है? नो, अंबानी सर किसी को नहीं जानते। वो कह रहे हैं वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स। दे आर इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वर्कर। यही उनको मोटिवेट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। उनका काम ही यही है कि वर्कर से काम कैसे निकलवाया जाए। तो यही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। यार ये लोग जो सुपरवाइजर होते हैं वो रखते क्यों हैं? हम इसलिए रखते हैं ताकि वो आईएस मेंटेन करें वर्कर्स पर, वो वेस्टेज ना करें, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ काम करें। तो इन्हीं की वजह से तो जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है वो मिनिमाइज किसकी वजह से होता है? इनकी वजह से ना। इन्हीं की वजह से अगर ये होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो पाएगी और कॉस्ट मिनिमाइज हो पाएगी। तो दे आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स। अब फंक्शन समझ आए और कौन कौन काम करता है। इनका काम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का काम, या मैं बोलूं लोअर लेवल मैनेजर का काम, इनका काम मेंटली कम और फिजिकली ज्यादा होता है। बट टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रेसफुल और कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उनका मेंटल स्ट्रेस ज्यादा लगता है, मेंटली वो ज्यादा काम करते हैं। Am I clear with all the 3 levels of management?
top management, middle management and lower level management. This is the level of management. जब मैंने तुम्हें पॉइंट पढ़वाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, तब हमने कहा था कि मैनेजमेंट सारी जगह चाहिए और सारे लेवल्स पर चाहिए, टॉप लेवल पे भी चाहिए, मिडिल लेवल पे भी चाहिए और ऑपरेशनल लेवल पे भी चाहिए. आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि मैंने समझा पाऊं. अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक में, किस लाइन में क्या चीज समझ नहीं आई. फॉर श्योर आई विल गोइंग टू रिप्लाई यू. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस, if possible, do join us. You will going to feel the difference by joining our. Thank you very much. This segment is all about functions of management. अभी हम पढ़ते जा रहे हैं management is the process, management is the process, management is the process. Management is the process of what? Management is the process of function of management. A function of management is what? Function of management means, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, there are 5 function of management. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के तरीके से चल रही है तो उसे सबसे पहले प्लान करना होगा, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना होगा, फिर उसे स्टाफ करना होगा, फिर उसे डायरेक्ट करना होगा, फिर उसे कंट्रोल करना होगा. दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. दिस इज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट के फंक्शन है. अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट तरीके से चला रही हूँ तो मुझे ये फंक्शन परफॉर्म करने होंगे. गाइस, फंक्शन परफॉर्म करने बहुत आसान है. इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑन योर, इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ बर्थडे पार्टी और मिस्टर मल्होत्रा हु इज प्लानिंग to open a showroom of shoes, उन सब को मैनेजमेंट करनी होगी. अगर मैं तुम्हारे ऊपर लेके चलूं, तुम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, पहले तुम प्लान करोगे, फिर उसे ऑर्गेनाइज करोगे, फिर बंदे हायर करोगे, यार ये बंदे मेरे ये काम करेंगे, मतलब डेकोरेट करेंगे, मेरा खाना बनाएंगे, उन्हें तुम डायरेक्ट करोगे और कंट्रोल करोगे. ऐसे ही मिस्टर मल्होत्रा एक शोरूम को खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं. उनके पास एक छोटा सा शॉप है जो वो रन कर रहे हैं. But now Mr. Malhotra is planning to open a big showroom for shoes. अब वो क्या कर रहे हैं? पहले उन्होंने प्लान करा, यार अभी मैं कहा हूं कि मैं एक छोटी सी शॉप पर हूं, बट मुझे एक शोरूम खोलना है. तो वो प्लान करेगा ना, कहाँ खोलना है, क्या वेराइटीज ऑफ शूज रखनी होगी, कितनी वेराइटी रखनी होगी, कहाँ से परचेज करूंगा, उसने सारा का सारा प्लान करा. द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग. मिस्टर मल्होत्रा प्लान where I am and where I have to go. I have to plan कि अभी मैं कहाँ हूँ, कि मैं एक छोटी सी शॉप खोल रहा हूँ, बट मुझे क्या खोलना है, एक शोरूम खोलना. I have to plan. So planning bridges the gap where we are and where we want to go. हमें कहाँ तक जाना है वो प्लानिंग करता है. It is all about mental exercise कि हमें सोचना है कि हमें क्या करना है. That is planning. मिस्टर मल्होत्रा ने प्लानिंग कर दी, बस उसके बाद वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे अपने प्लान को. मतलब दे विल गोइंग टू ट्रांसलेट देयर प्लान इनटू एक्शन. वो एक शीट लेंगे और अपने स्ट्रक्चर बनाएंगे कि अपने वो आइडेंटिफाई करेंगे, मेरा काम क्या है, यार मेरा काम है शोरूम बना के जूतों चप्पलों को बेचना. तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि मेरा काम क्या है और उसे डिवाइड कर दिया कि मुझे सेल्समैन चाहिए जो मेरा माल बेचे, मुझे फाइनेंस वाले बंदे चाहिए जो मेरा सारा इन आउट संभाले कैश का, मार्केटिंग वाले बंदे चाहिए बहुत सारे जो मेरा बाहर मार्केटिंग करें. उन्होंने डिवाइड कर लिया, उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना लिए, ये मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है. उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना लिए और उनको अथॉरिटी दे दी कि तुम्हारे पास ये अथॉरिटी रहेगी, कौन किसके सुपीरियर होगा, कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा. मिस्टर मल्होत्रा हैव डिसाइडेड एवरीथिंग. उसने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा. जो मैंने प्लान करा था, अब वो प्लान एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है कि मेरा स्ट्रक्चर ऐसा लगेगा, मैं सबसे बड़ा होगा, मेरे नीचे इतने मैनेजर्स होंगे और मैनेजर्स के नीचे इतने सेल्स पर्सन होंगे. उसने स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, यार ये स्ट्रक्चर खाली पड़ा रहेगा, इनमें कुछ भरेंगे नहीं. द नेक्स्ट स्टेप इज, द नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग. जो उन्होंने स्ट्रक्चर डिसाइड करा कि पहले मैं होऊंगा, दैट इज आई एम द सीईओ ऑफ द शोरूम, मेरे नीचे सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर होगा. सेल्स मैनेजर के नीचे कितने सेल्स बंदे होंगे, फाइनेंस के नीचे कितने होंगे, मार्केटिंग में मुझे कितने चाहिए, ये खाली स्पेस है. उसने सिर्फ स्ट्रक्चर को एक आउटलाइन दी थी. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग. स्टाफिंग मींस फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब.
अब जो एक खाली स्पेस है उनके लिए वो स्टाफिंग, एम्प्लॉयज को ढूंढेगा। स्टाफिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। वो ह्यूमन रिसोर्स को पकड़ के लाएगा और इन खाली जगह पर बिठाएगा, दैट इज स्टाफिंग। द नेक्स्ट फंक्शन, स्टाफ कर लिया, ये लोग बैठे रहेंगे बस अपने आप काम हो जाएगा? नो, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज लीडिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग। उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको डायरेक्ट कर रहा है, किनको? एम्प्लॉयज को। जो अपना मिस्टर मल्होत्रा है वो इन सबको क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, सुपरवाइज करेगा, उनको कम्युनिकेट करेगा, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे मत करो, तुम कर सकते हो। वो उन्हें डायरेक्ट कर रहा है, वो उन्हें सुपरवाइज, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, These 4 are the elements of directing. ये 4 elements of directing है। जब हम स्टाफिंग कर लेते हैं तो हम उन्हें डायरेक्ट भी तो करेंगे ना, उन्हें बताएंगे भी तो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लोगे तो ज्वाइनिंग के बाद डायरेक्टिंग मैं करूंगी ना, मैं बताऊंगी भी तो कि हमारी वीडियो सिर्फ देखना इनफ नहीं है, हम और जो जैसे सिर्फ वीडियोस नहीं देते, हम तुम्हें पूरा फॉलो अप करेंगे, तुम्हें मोटिवेट करेंगे, तुम्हें सुपरवाइज करेंगे, तुमसे कम्युनिकेशन करेंगे। दैट इज ऑल इज डायरेक्टिंग। मिस्टर मल्होत्रा भी सेम वही करेगा, डायरेक्टिंग करेगा उनको। लास्ट इज कंट्रोलिंग। मिस्टर मल्होत्रा ने प्लान किया था मुझे शोरूम खोलना है, यहाँ खोलना है, इतनी मैं सेल्स करूंगा। अब वो कंट्रोल भी तो करेगा। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? आई विल गोइंग टू कंपेयर, आई हियर इज मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा विल गोइंग टू कंपेयर देयर प्लान विद देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो कितने अचीव हो पाए और कितने नहीं अचीव हो पाए, वो मिस्टर मल्होत्रा देखेगा। क्या मैंने जो प्लान किया था, क्या मैं वो अचीव कर पाया? दैट इज कंट्रोलिंग। अगर मैं नहीं कर पाया, डेविएशंस कहाँ आई, मैं कैसे उसे रीअकर करने से रोक सकता हूँ? दैट इज कंट्रोलिंग। तो वी हैव लर्न्ड द 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. I will say don't take much stress because these are the 5 proper chapter which we are going to study in detail. हम बहुत वास्ट में पढ़ेंगे इनके बारे में। बट स्टिल इफ यू हैव any doubt over this topic, you can contact me and ask me by giving your comments in the chat box.